Learn, grow, succeed with Tiwari's Academy. Jai Shri Krishna, Radhe Radhe. Welcome to recorded videos of Tiwari's Academy. My name is Akhilesh Tiwari. So today is basically the first class of 2026-27 ICSE. In today's class, we are going to start with the first chapter, that is GST. As you can see on my board, as you can see on the board. Now, in this chapter, now kids, as you all can see, this is the chapters or the reference books which I have written over here. So you can go through with R.K. Bansal, R.S. Agarwal, M.L. Agarwal and Nirmala Shastri. So I'll be referring to all these books and I'll be asking you a few questions which will be from these books as well. So when I'm doing explanation, at the same time, we'll also be solving few sums based on them, and I'll be having one sheet of some basic questions in which I'll be dealing. Kids, so basically kids, when I'm starting with GST. Now GST is a part of your commercial maths. Under commercial maths, we'll be dealing with three chapters. First is my GST, goods and service taxes, banking and shares and dividends. So under commercial section, so this whole once I'm done with the entire commercial part, I will upload the PPT on my website as well as on my Instagram handle as well as on my YouTube channel. Okay, so if anybody needs any kind of help in commercial maths, they can connect me through chat, through WhatsApp, or they can also go on my Instagram handle and they can follow me. At the same time, they will be able to find all the updates regarding the chapters which I'll be doing online. All my recorded videos will be shared on my YouTube channel. Okay, so today we are starting with GST chapter. Let's start with GST chapter. Now kids, what is GST? Now most of the kids, they know full form of GST, goods and service tax. What is goods and service tax? क्या है ये? What exactly is GST? As you can see, my first question, which I normally ask to each and every child when I start with my new session, what is GST? And kids get, they just normally, few of them, they answer me, sir, it's a kind of a tax charged by the government. Yes, it's a kind of a tax charged by the government. But when I talk about GST specifically, so now what I did, I just tried to break them up. And after breaking them up, what I could understand was G stands for my goods, S stands for my services, and T stands for my tax, which is very much, applicable on the name itself, right? But what about the goods? Who deals with the good? Dealing with good is basically the manufacturers. They prepare goods, they manufacture the goods, and after manufacturing goods, what will happen to these goods? Now this good has to go to the seller, because manufacturing good is not the only thing, right? After manufacturing something, that good has to go to the seller, and then finally that good has to reach to the customer. So when we talk about this transition, manufacturer, dealer, retailer, and then finally to consumer, so this whole thing we have to understand. So basically, I'm trying to make you all understand goods means dealer and manufacturer. Manufacturer makes the good. Manufacturer buys the, you can say, they will get the raw materials and they will make the finished good. And then finally that finished good will go to the dealer. ठीक है? एक बार जब goods डीलर के पास, एक बार जब फिनिश गुड डीलर के पास पहुंच जाता है, वो क्या करता है? वो सर्विस प्रोवाइडर, वो सर्विस भी प्रोवाइड करता है। कभी तुम डायरेक्टली क्या कर सकते हो बेटा, यहाँ पर डीलर से हमारे पास जो गुड्स है वो कहाँ पर जा रहा है? डायरेक्टली वो जा रहा है मेरे रिटेलर के पास में, रिटेलर के पास में। ठीक है, रिटेलर सर्विस प्रोवाइड क्या करता है? वो सामान को सामने बेच रहा है, किसको? कस्टमर को। वो बंदा कस्टमर को बेच रहा है, ठीक है ना, ही सेलिंग इट टू द कस्टमर। अभी यहाँ पर पूरे ट्रांजेक्शन में मैन्युफैक्चरर ने सामान बनाया, फिर डीलर ने
सामान मैन्युफैक्चरर से डीलर के पास में गया, डीलर के पास से रिटेलर के पास में गया, रिटेलर के पास से कस्टमर के पास गया। तो अभी गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट का वॉच रहता है, सारे ट्रांजेक्शन्स पे गवर्नमेंट का वॉच है। वो वॉच कैसे होगा, मैन्युफैक्चरर ने कुछ सामान बनाया, उसने डीलर को बेचा, जब वो ट्रांजेक्शन हुआ उस टाइम पे भाई गवर्नमेंट खड़ा हो जाएगा, बोलेगा भाई चलो पैसा निकालो, टैक्स दो मुझे। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर ने टैक्स पे किया, किसके लिए, सामान बनाने के लिए। उसने टैक्स चार्ज किया डीलर से, किसके लिए, भाई देखो मैंने वहां पर पे किया, अब तुम मुझे पे करो, बिकॉज तुम भी इसी कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हो। फिर डीलर ने टैक्स किया किसको, रिटेलर को, रिटेलर ने किसको टैक्स किया, कस्टमर को टैक्स किया। तो बेसिकली ये एक चेन है, इट्स अ चेन फ्रॉम वेयर टू वेयर, फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू डीलर टू रिटेलर एंड टू फाइनली कस्टमर। सो ये जो चेन है बेटा, ये चेन हमको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंटली हमें चेन को समझना है। मैन्युफैक्चरर ने सामान बनाया, उसने गवर्नमेंट को टैक्स दिया था सामान बनाने की परमिशन लेने के लिए। फिर वो सामान डीलर के पास में गया, डीलर ने टैक्स पे किया मैन्युफैक्चरर को, ये दिखाने के लिए कि भाई अब मैं सामान को बेच सकता हूँ, मैं कोई इलीगल काम नहीं कर रहा हूँ। फिर डीलर ने वही सेम सामान रिटेलर को बेचा, रिटेलर ने फिर टैक्स पे किया, ये बताने के लिए कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ। अब रिटेलर क्या कर रहा है, रिटेलर ने कस्टमर को टैक्स पे किया, कस्टमर टैक्स पे कर रहा है रिटेलर को, रिटेलर ने टैक्स पे किया डीलर को, डीलर ने टैक्स पे किया मैन्युफैक्चरर को। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, ठीक है, बट एक्चुअली कॉम्प्लेक्स है नहीं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये बहुत सिंपल फंडा है। जीएसटी का मतलब होता है हम हर ट्रांजेक्शन में हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, और वो जितनी बार वो ट्रांजेक्शन होगा उतनी बार हमें गवर्नमेंट को हर ट्रांजेक्शन का टैक्स पे करना। इसीलिए कभी कभी अगर जो बच्चे बिजनेस बैकग्राउंड से हैं, या फिर जो जिनके फादर जिनके पेरेंट बिजनेस करते हैं, उन्हें ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होती है कि हम टैक्स कब पे कर रहे हैं। टैक्स हम हमारे प्रॉफिट पे पे करते हैं। हमने सामान खरीदा 1,000 रुपए का, तो हमने ऑलरेडी सामान जीएसटी पे करके हमने सामान खरीदा हुआ है, और जब मैं ये सामान 1,000 रुपए का सामान जब मैं 1,200 में बेचूंगा या फिर 1,300 में बेचूंगा, तो गवर्नमेंट को क्या दिख रहा है पता है, गवर्नमेंट को ना वो 300 रुपया दिखता है। गवर्नमेंट को 1,000 रुपए का तो टैक्स मिल चुका है ना, अब वो क्या करेगा, भाई साहब ये 300 रुपए का तुमने जो प्रॉफिट दिखाया है, उस प्रॉफिट पे जरा मुझे टैक्स दो। तो वो 300 पे टैक्स ले लेता है। उसके बाद रिटेलर के पास गया, रिटेलर बोला भाई हमने देखो 1,300 पे टैक्स दिया हुआ है, कस्टमर को हम 2,500 में बेच रहे हैं या फिर 1,500 में बेच रहे हैं। तो कस्टमर क्या करता है बेचारा, कस्टमर 1,500 पे हमको टैक्स पे करता है। इन शॉर्ट अगर देखा जाए, लॉजिकली सारे कस्टमर्स अगर देखें, तो ये जो पूरा चेन है, मैन्युफैक्चरर का, डीलर का, रिटेलर का, किसी ने कोई टैक्स नहीं पे किया हुआ है, पूरा पूरा टैक्स किसने पे किया हुआ है, कस्टमर ने पे किया हुआ है। समझे, तो ये बेटा पहला चीज था, ये मैं थोड़ा सा ट्राई कर रहा हूँ जीएसटी समझाने के लिए। अभी जो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे कि जीएसटी, हम जब जीएसटी के बारे में हमने बात किया, जीएसटी क्या है, कैसे टैक्स लग रहा है, कौन कहाँ टैक्स पे कर रहा है, मैन्युफैक्चरर ने टैक्स पे किया, डीलर ने टैक्स पे किया, रिटेलर ने टैक्स पे किया, फिर कंज्यूमर ने टैक्स पे किया। बट इसके अलावा भी कुछ रूल्स हैं जो हमको फॉलो करने हैं। जैसे कि अब अगर पूरा ट्रांजेक्शन विद इन द स्टेट है तो हम क्या कहेंगे, अगर मेरा कोई ट्रांजेक्शन आउटसाइड द स्टेट है तो हम क्या करेंगे। ठीक है, अगर सपोज मैंने कोई ट्रांजेक्शन यूनियन टेरिटरीज में की तो हम क्या करेंगे। सपोज मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे डैडी यूपी में बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझे कोई गुड बेचा मुंबई में, तो मैं क्या करूंगा, मुझे वहां पर टैक्स पे करना होगा। बट यहाँ पर गवर्नमेंट का क्या रूल प्ले होता है, वो चीज़ हमको समझना पड़ेगा। गवर्नमेंट हमें चार्ज कैसे करती है, और जो पैसा जाता है वो पैसा कैसे गवर्नमेंट में डिवाइड होता है, वो चीज़ हमको समझना है। बिकॉज जीएसटी का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ जीएसटी हमने पे कर दिया, बट वो जीएसटी जो हमने पे किया वो किसको कितना मिल रहा है, वो चीज़ हमें समझना है। सो दैट पार्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। बेसिकली अभी यहाँ पर हम दो टाइप के जीएसटी, इनफैक्ट हम टाइप्स के जीएसटी देखेंगे, बट जो मेन हमें जो समझना है वो दो टाइप इंपॉर्टेंटली समझना है। दैट इज नंबर वन इज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट चार्जिंग जीएसटी एंड स्टेट गवर्नमेंट चार्जिंग जीएसटी। तो अभी गवर्नमेंट के बीच में ये समझौता हुआ, देख भाई किसी भी स्टेट में विद इन द स्टेट अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है तो जो जीएसटी मिलती है ना वो हम आधा आधा बांटेंगे।
ठीक है। सपोज अगर मैंने एक ट्रांजेक्शन किया, उस ट्रांजेक्शन में मुझे 100 रुपया मिला, मतलब गवर्नमेंट को 100 रुपया जीएसटी मिला। महाराष्ट्र के अंदर मैंने कोई ट्रांजेक्शन की और उस महाराष्ट्र के अंदर मुझे जीएसटी, मैंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मैंने जीएसटी 100 रुपया दिया, तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट महाराष्ट्र के पास देखेगा, भाई साहब 50 इधर दो, ठीक है। तो ये तो हो गया विद इन द स्टेट। इसको हम क्या बोलेंगे, अब यहाँ पर हमें समझना है, यही चीज बेटा हमको यहाँ पर समझना है कि हम दो टाइप का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। एक तो हमारा जो ट्रांजेक्शन होता है बेटा वो विद इन द स्टेट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। जो सपोज फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा मुंबई के अंदर है, कोई भी डीलर मुंबई में है या फिर महाराष्ट्र में है, तो डीलर और रिटेलर कंज्यूमर सब महाराष्ट्र के ही हैं, कोई मगजमारी नहीं है। हम क्या बोलेंगे, माई होल ट्रांजेक्शन इज हैपनिंग विद इन द स्टेट। नाउ दैट काइंड ऑफ अ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब अगर सपोज कोई मुंबई वाला डीलर सामान बेच रहा है यूपी में, that is in UP state. Mumbai, Maharashtra ka state ka transaction is happening within the UP state. So what is happening is that is going to take place under my interstate transaction. That means outside the state. That means from one state to the another state. So basically one dealer is dealing with the stuff with the other state dealer. ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी कुछ टैक्स तो पे, हम टैक्स जीएसटी पे कर रहे हैं, बट यहाँ का पैसा कौन ले रहा है, ठीक है। वो देखो अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जब कोई भी ट्रांजेक्शन विद इन द स्टेट होता है तो यहाँ का जो जीएसटी होता है ना बेटा, वो दो पार्ट में डिवाइड, ऑन द स्पॉट दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिया और आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट ने ले लिया, ठीक है। तो अगर सपोज 100 रुपया जीएसटी मिला, ठीक है, तो 50 रुपये कहाँ चला गया, सीजीएसटी, और 50 रुपये कहाँ चला गया, एसजीएसटी। इतना पार्ट समझा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा विद इन द स्टेट। अगर सपोज यही सेम चीज हमारा, द ट्रांजेक्शन इज हैपनिंग बिटवीन टू स्टेट्स, ओके, देन व्हाट विल हैपन इन दैट केस, यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट, तो जो हमको जीएसटी मिलती है उसको हम ड्यूअल जीएसटी कहते हैं या फिर आईजीएसटी कहते हैं। आईजीएसटी का मतलब क्या होता है बेटा, पूरा का पूरा जो जीएसटी है वो किसके पास में जाएगा, वो सेंट्रल के पास में जाता है, ठीक है। सो दिस मनी विल गो स्ट्रेट अवे टू सेंट्रल गवर्नमेंट, फाइन। नाउ दिस मनी विल नॉट गो टू स्टेट गवर्नमेंट। इनफैक्ट बेटा यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी पैसा नहीं मिलता, यहाँ पर पूरा का पूरा जो जीएसटी है वो कहाँ पर जा रहा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जा रहा है। तो हमको बेटा हमको बस यही चीज याद रखना है कि जो ट्रांजेक्शन हो रहा है, जो भी कोई भी बंदा सामान बेच रहा है या फिर कोई बंदा सामान खरीद रहा है, कोई डीलर ने सामान बेचा या फिर कोई डीलर ने सामान खरीदा, अगर वो विद इन द स्टेट हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र स्टेट में ही हो रहा है, तो जो भी हमको जीएसटी मिलती है वो हमको दो पार्ट में डिवाइड कर देना है, सेंट्रल को देना है आधा और आधा हमको स्टेट को देना है। अगर यही सेम ट्रांजेक्शन दो स्टेट के बीच में हो रहा है, अगर सपोज यही ट्रांजेक्शन दो स्टेट के बीच में हो रहा है, तब हमें ध्यान में रखना है, तब स्टेट को कोई भी जीएसटी नहीं मिलता, डायरेक्टली पैसा किसको जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, इसलिए हम इसको कहते हैं आईजीएसटी, ठीक है। ये हमको यहां पर आ गया, होप इतना क्लियर है सबको। नाउ नेक्स्ट बेटा हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट जीएसटी। हमने बात तो कर लिया जीएसटी क्या है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। जीएसटी कहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा है, मतलब कैसे एप्लीकेबल होता है। जीएसटी दो टाइप में मतलब चार्ज किया या फिर तीन टाइप में चार्ज किया जाता है। एसजीएसटी के फॉर्म में चार्ज किया जा रहा है, सीजीएसटी के फॉर्म में चार्ज किया जा रहा है और आईजीएसटी के फॉर्म में चार्ज किया जा रहा है। बट चार्ज हम कैसे करेंगे, कैसे हम जीएसटी फाइन करेंगे, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो हाउ डू वी फाइंड जीएसटी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब देखो बेटा मैंने यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, कोई भी डीलर अगर हमारे पास है, कोई भी डीलर, अगर सपोज मैं भी एक डीलर हूं, ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं जब कोई सामान खरीद रहा हूं, ठीक है, सामान खरीदते समय भी मैं जीएसटी पे करता हूं जिससे मैंने सामान खरीदा, और जब मैं वही सेम सामान बेचूंगा किसी को तो भी मैं जीएसटी पे करूंगा। सो आई एम गोइंग टू पे जीएसटी while buying the goods. At the same time, I'm going to charge GST when I'm selling the good. ठीक है, so we have to understand this. So when I'm paying, it is called input GST.
When I'm charging, it is called output GST. ठीक है, we have to understand this word. So, okay, so basically what is happening is, so the GST payable to the government by the dealer will be what? Just now I told you, when I am selling something, I am going to collect the GST from the buyer, and at the same time, when I was buying the good from the dealer, या फिर from the manufacturer, I had to pay the GST to the manufacturer. So basically, I paid the GST and I collected the GST. Now there is a difference between both of them. क्या हो जाएगा? So the GST collected will be called as output GST and GST paid will be called as input GST. Got it? Now, so basically output GST means what? आउटपुट जीएसटी का मतलब है जो मैंने टैक्स चार्ज किया है while selling the good. So the selling price पे जो मैंने टैक्स चार्ज किया वो मेरा आउटपुट जीएसटी है. So basically what I'm doing is I'm charging GST on my selling price. Correct? I'm charging GST on my selling price. At the same time, I'm paying GST on my cost price. Got it? So if I find the difference between my selling price and cost price, and I find the GST on my difference, that is the profit. Basically what I'm doing is I'm getting the profit ना. अभी मैंने क्या कहा तुमसे पहले कि भाई गवर्नमेंट ना तुम्हारे बस पैसे पे ध्यान रखता है, तुमने कितने का प्रॉफिट किया, ठीक है, तो वो हर ट्रांजेक्शन पे वो बंदा जीएसटी चार्ज कर रहा है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे पास मैंने सेलिंग प्राइस पे जो जीएसटी चार्ज किया और मैंने कॉस्ट प्राइस पे जो मैंने जीएसटी पे किया, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो अमाउंट होगा जो जीएसटी मुझे गवर्नमेंट को पे करनी होगी. ठीक है, दैट इज द जीएसटी ऑन द वैल्यू एडिशन. सो बेसिकली तुमने कितना वैल्यू ऐड किया, 1000 रुपए पे तुमने 500 ऐड किया, तो 500 रुपए मेरा वैल्यू एडेड हो गया, तो वो 500 पे तुम वापस से जीएसटी पे करोगे. सो बेसिकली फर्स्ट ट्रांजेक्शन यू डिड ऑन 1000, यू पेड जीएसटी ऑन 1000. नाउ नेक्स्ट 500 का प्रॉफिट यू आर शोइंग, सो नाउ यू आर पेइंग जीएसटी ऑन 500. So in total you are paying GST on 1500, but in steps. First on 1000 and then on 500 rupees, like that. So yes, बेटा यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या होता है. GST is basically what? It is the it means my GST is only value added tax. बेटा क्या हो जाता है, इसलिए हम GST को value added tax भी कहते हैं. अब देखो बेटा एक चीज बेटा हमको बहुत सावधानी से ये चीज समझनी है कि अगर सपोज हमें कुछ भी नहीं बोला गया हुआ है सम के दौरान, या फिर कोई सम तुम्हें ऐसा दिया हुआ है जहां पर उन्होंने मेंशन नहीं की है कि ये जो ट्रांजेक्शन है वो इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है, ठीक है, उस समय हमको बहुत ध्यान से सम को रीड करना है. और सम को रीड करते समय बेटा अगर हमें कुछ भी नहीं वहां पर बोला गया, इंटर है कि इंट्रा है, तो बेसिकली उस सम को हम हमेशा इंट्रा स्टेट ही देखेंगे. वी विल सॉल्व दैट सम विद रिस्पेक्ट टू इंट्रा स्टेट. गॉट इट? दैट वे. Okay, so this beta we have to understand, whenever they don't specify in the given sum that the sum is interstate or intrastate, we have to always consider intrastate transaction. Got it? Hope this much is clear. Now kids, we are coming to this one example. I just want to show you all this one example. ये ना बेटा एग्जाम्पल जो तुम देख रहे हो ना यहाँ पर स्क्रीन पे, ये एग्जाम्पल मैंने HSC के बुक से निकाली है. बहुत बढ़िया थी. HSC 11th स्टैंडर्ड की कमर्शियल मैथ्स का चैप्टर है जहाँ पर जीएसटी उनको सिखाया जा रहा है. वहाँ पर ये बहुत ही बढ़िया मुझे एग्जाम्पल मिला था. that is the only reason why I took this example from that book. And I'm also telling you this because if someone is from if somebody wants to go through with this example, they can also refer this to HSC 11th grade commerce math book from commercial chapter. ठीक है? Alright. Now in this example beta, can you see this? There is a manufacturer over here. तो यहाँ पर ना बंदा manufacturer है. There is a manufacturer over here beta. Now manufacturer makes a shirt. He sells it to the wholesaler. Now then the wholesaler sells it to the retailer and the retailer sells it to the customer. यहाँ पर ट्रांजेक्शन किसके बीच में है? पहला ट्रांजेक्शन हमारा मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के बीच में है. ठीक है, अब क्या हुआ, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को 400 रुपए में शर्ट बेचा. ठीक है,
₹400 पे 5% जीएसटी उसने जब चार्ज किया तो कितना चार्ज किया उसने जीएसटी? ₹20। कितना चार्ज किया? ₹20। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो मैन्युफैक्चरर ने ₹20 का जीएसटी पे कर दिया। सॉरी, मैन्युफैक्चरर ने जीएसटी चार्ज किया कितना? ₹20। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है? नाउ सेकेंडली, अब देखो, होलसेलर ने जब रिटेलर को वही सामान 500 में बेचा, तो ये भाई साहब क्या कर रहे हैं? ये जीएसटी चार्ज करेंगे ₹500 पे। पहले जीएसटी चार्ज हुआ था ₹400 में, तो ₹400 का जीएसटी कितना हुआ था? ₹20। तो फिर होलसेलर ने ऑलरेडी ₹20 पे कर दिया था। ठीक है, अब क्या हो रहा है सेकंड केस में? यहाँ पर नाउ द ट्रांजेक्शन इज हैपनिंग बिटवीन होलसेलर एंड द रिटेलर। नाउ रिटेलर ने ₹500 पे जीएसटी पे किया। कितना जीएसटी निकला? ₹25। ठीक है, बट होलसेलर भाई साहब ने ऑलरेडी ₹20 पे कर दिया है। बचा कितना? बचा उसके पास ₹5, जो कि यहाँ तक के ट्रांजेक्शन का जो जीएसटी हो रहा है ₹25 हो रहा है, बट होलसेलर ने ऑलरेडी ₹20 पे कर दिया है। बचा कितना है? सिर्फ ₹5। तो ₹5 वो और ऐड कर देगा। तो कितना हो गया? पहले स्टेप में उसने 20 पे किया था, दूसरे स्टेप पे उसने ₹5 ऐड कर दिया यहां तक। ठीक है, ₹25। अब क्या हो रहा है? अब रिटेलर भाई साहब ने कस्टमर को बेचा। कितने में बेचा उसने? 650 में। 650 का जो ट्रांजेक्शन है उसको 5% जो जीएसटी हुआ वो कितना हो गया? ₹32। 32.5 rupees. Now this 32.5 rupees GST retailer has to pay. But retailer is telling that I already paid 25 rupees to the wholesaler. So why do I pay 32? Now, so what he will do is he will keep 25 rupees in his pocket and he will find the difference and he will pay the difference. Difference कितना हो जाएगा मेरे पास? 5 2 7 ₹7.5। So now government will again get 7.5 rupees. ₹7.5 गवर्नमेंट को वापस से मिल गया। कहाँ से मिला? रिटेलर से मिल गया। अब तुमको बेटा एक चीज यहाँ पर समझ में आएगा, इन सब चीजों में बेवकूफ कौन बनता है? कस्टमर। कस्टमर ने सबका जीएसटी पे किया। कितना पे किया? कस्टमर ने जीएसटी ₹32.5, 32.5 rupees. So basically at the end of the day he is buying an article for 650 rupees plus 32.5 rupees on that as a GST. So he is paying how much? 682 rupees 0.50 paisa. So this is the exact amount which has been paid by the customer. So basically government is receiving how much GST in total? 32.5 rupees. From whom? From customer. But this money is going to the government but in steps. First step mein government received 20 rupees from the wholesaler, and then second 5 rupees he received from retailer, basically the difference which we got, and the rest 7.5 rupees he received when the transaction happened between retailer and the customer. So that money went from the retailer itself, you can say that way. Okay, so in total my government received 32.5 rupees, and this 32.5 rupees will be divided further to state government, C GST and S GST. तो इनको साढ़े मतलब 16.25 और 16.25 रुपीस इंडिविजुअली कट हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी 16.5 मतलब ₹16.25 और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ₹16.25 मिलेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था जो मैंने अभी सभी को I just tried explaining with the help of this example how the GST is, segregated within the, transactions. So when there is one transaction happening from manufacturer to wholesaler, so there was a GST paid by the wholesaler, and then there was another transaction which was happening between wholesaler and the retailer. Yes, retailer. Then there was a GST paid by the retailer. So, and the last GST was paid by the customer. So basically all the transaction happened was within the set value added it was when the
मनी वेंट ऑन द हायर बेसिस। 400 से जब 500 हुआ तो 100 रुपया यहाँ पर वैल्यू एडेड हुआ। जब 500 से 650 हुआ तो यहाँ पर 150 रुपये का वैल्यू एडिशन हुआ था। तो जितनी बार वैल्यू एडिशन हुआ उतनी बार जीएसटी हमें पे करना पड़ेगा। ठीक है, होप ये पार्ट समझ में आया हो बच्चों। और कोई भी डाउट है किसी को भी तो वो चीज आप सब कमेंट में छोड़ सकते हैं। ना बेटा ये now we saw GST, what is GST? Hope the GST chapter का जो मैंने explanation वाला part किया हुआ है that is understood to each and everyone. I'm trying to solve few sums based on GST chapter. Let's see how it goes. Alright. So now beta when we look at this first sum, now this sum is also a board sum. It came in 2017 or 18, I'm not very sure. People can, kids can check it. Now this Akash is a guy in Bihar. He buys an article for rupees 20,000. Okay, so now we are talking about Akash over here. ठीक है बच्चा, हम लोग यहाँ पर आकाश की बात कर रहे हैं। उसने आर्टिकल खरीदा, कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 20,000 रुपीज में उसने आर्टिकल खरीदा और उसने बेचा किसको? संजीव को। संजीव को बेचा उसने 20% 10% के प्रॉफिट में। तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हमें फाइंड करना है। सो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना था इसके पास यहाँ पर हमारे पास? सो बेटा यहाँ पर कॉस्ट प्राइस हमारे पास 20,000 है। 20,000 प्लस 10% प्रॉफिट था। सो 10% ऑफ 20,000 हम फाइंड कर लेंगे। So 20,000 plus 2,000 that is 22,000 रुपीज में उसने आर्टिकल बेचा किसको? संजीव को। ऑलराइट, संजीव को उसने बेच दिया। ठीक है, अब संजीव ने यही सेम चीज आर्टिकल, लेकिन देखो बच्चा अभी हमको एक चीज ये समझनी है कि जब खरीदा था तो 20,000 में खरीदा, बेचा उसने कितने में? 22,000 में बेचा। फाइन, तो यहाँ पर जीएसटी होगा कि नहीं होगा? जीएसटी होगा। तो जीएसटी हम कैसे फाइंड करेंगे? जीएसटी कैसा हो जाएगा? अगेन इट इज आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। फिर मैंने बेटा ये भी एक चीज कहा था, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी का मतलब क्या हो जाएगा? दैट इज जीएसटी चार्ज्ड ऑन सेलिंग प्राइस माइनस जीएसटी चार्ज्ड ऑन कॉस्ट प्राइस। सो इन शॉर्ट इफ आई वांट टू फाइंड जीएसटी on selling price minus GST on cost price. So that is GST on 22,000 minus GST charged on paid on 20,000. So what is the GST over here? ठीक है, GST बेटा 18% है। So 18% हमें फाइंड करना है किस पे? 2,000 रुपीज पे। तो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 18%? 18% जो है 2000 पे दैट विल बी 18 upon 100 into 2000, both the zeros gets cancelled, so 18 into 20, 18 दूनी 36, 360 रुपीज जीएसटी पे किया किसने? 360 रुपीज बेटा उसने जीएसटी पे किया आकाश ने गवर्नमेंट को इस समय। ठीक है, हमने बेटा यहाँ पर आउटपुट जीएसटी और इनपुट जीएसटी सेपरेटली नहीं फाइंड किया है, क्योंकि हमें बोला गया हुआ है कि फाइंड द टैक्स पेड बाय द संजीव टू द गवर्नमेंट अंडर जीएसटी। ठीक है, ये मैंने एक पार्ट यहाँ पर दिखाया हुआ है। अभी टैक्स पेड बाय द संजीव का मतलब क्या होगा? संजीव ने जब बाय किया था तो संजीव ने 22,000 में बाय किया था। ठीक है, वो जब बेचेगा उड़ीसा में, अब देखो यहाँ पर एक चीज बेटा हमको समझनी है, ये जो ट्रांजेक्शन हुआ था आकाश और संजीव के बीच में वो बिहार के अंदर हुआ था, मतलब वो विद इन द स्टेट हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर जो जीएसटी मिलेगी वो दोनों गवर्नमेंट्स को मिलेगा। बट अभी जो सेकेंड ट्रांजेक्शन हो रहा है वो मेरा संजीव और रहमान के बीच में हो रहा है। ठीक है, ये इंटरस्टेट है। क्या है ये? इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है। अब जब इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन होगा तो यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी काम नहीं आने वाला। यहाँ पर क्या काम आने वाला? यहाँ पर काम आएगा आईजीएसटी। ठीक है, फिलहाल उसने कितने में बेचा? 15% के प्रॉफिट में उसने बेचा। तो पहले अभी हमें कॉस्ट प्राइस तो पता है संजीव का, वो कितना था? संजीव का कॉस्ट प्राइस हमारा 22,000 रुपया था। ठीक है,
अब सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी उसकी, 15% हमको इसमें प्रॉफिट ऐड करना है, तो 22,000 रुपया प्लस 15% ऑफ 22,000 रुपया पकड़ लो, कितना हो गया फिर मेरे पास यहाँ पर, ठीक है। 15% कितना हो जाएगा, दैट इज both the zeros got cancelled, so this will become 15 2s are 30, 15 2s are 30, 33, यहाँ पर 3300 रुपीज उसको बेटा प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास, तो सेलिंग प्राइस हमें मिल गई 25,300 रुपया, ठीक है। उसने यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमको मिला हुआ है यहाँ पर, फाइन। अब हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, हमको बेटा एक चीज यहाँ पर देखनी है, उसने बेची है यहाँ पर। अब यहाँ पर जो जीएसटी चार्ज होगा वो इस पे चार्ज होगा, कितना चार्ज हो रहा है इसके ऊपर, यहाँ पर ये हम 18% जीएसटी 25,300 पे हम चार्ज कर रहे हैं। सो 18/100 into 25,300, both the zeros got cancelled, so we are going to multiply this 18 into 253, that will become how much, let's calculate this, कितना हो जाएगा, 253 into 18, 18 8 3s are how much, 18 3s are कितना जीएसटी, सो हाँ सॉरी मैंने बेटा कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर, सो मुझे क्या मिला आंसर, सो आई गॉट 4554। सो जीएसटी बेटा ये जो आउटपुट जीएसटी हमको मिला है कितना है, 4,554 रुपीज, ठीक है। और एक चीज और है, संजीव ने कितना पे किया था, एक्चुअली हमने बेटा यहाँ पर सेपरेटली फाइंड नहीं किया था संजीव का, तो हमें संजीव का ना सेपरेटली फाइंड करना चाहिए था। तो संजीव ने 22,000 पे कितना पे किया था जीएसटी, वो हमको फिगर आउट करना पड़ेगा। दिस इज माय आउटपुट जीएसटी, ये आउटपुट जीएसटी है, ठीक है। तो अभी इनपुट जीएसटी हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर। इनपुट जीएसटी कितना था, 18% ऑफ 22,000 विच वॉज 18/100 into 22,000, both the zeros will get cancelled, so 18 into 220, okay, so 18 2s are 36, 6 3 36 39, okay 39, तो यहाँ पर हमें कितना मिल रहा है जीएसटी 3960, ओके, तो हमें मिल जाएगा 3960। अब ना जीएसटी पेड कितना हो जाएगा, जीएसटी पेड टू द गवर्नमेंट will become how much, 4554, which is 4554 minus 3960, which is 441 carry over, 15 minus 6 is how much, 9, so 3 1, 14 minus 9 is 5। So basically बेटा यहाँ पर क्या मिल गया हमें, संजीव पेड how much, 594 rupees to government, okay, so how much Sanjeev paid over here, so he paid 594 rupees to the government। बेटा हम लोग ना यहाँ पर एक चीज और कर सकते हैं, जैसे हमने अभी यहाँ पर किया था डायरेक्टली हमने माइनस कर दिया प्रॉफिट को, वो चीज बेटा हम लोग यहाँ पर भी कर सकते थे। हम क्या कर सकते थे, जो प्रॉफिट हमको मिला यहाँ पर 3,300 रुपया, 3,300 पे अगर हमने 18% डायरेक्टली फाइंड किया होता हमको ये चीज यहाँ पर मिल जाता। बट मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर दिखाने के लिए कि आउटपुट जीएसटी कैसे निकालना है और इनपुट जीएसटी कैसे निकालना है उसको हमने देखा, एंड देन फाइनली वी आर फाइंडिंग द जीएसटी पेड बाय द संजीव टू द गवर्नमेंट। ऑलराइट, सो दिस इज वन ऑफ द सम व्हिच वी डिड। ऑलराइट, ठीक है, नाउ विल गो ऑन द नेक्स्ट सम। यस माय डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ विल गो ऑन द थर्ड क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज देयर इन द थर्ड क्वेश्चन, प्लीज कैन so now kids, now this third question, what does it says? It says that the price of a bicycle is rupees 31360 inclusive of tax. Now again in this sum we are having inclusive of tax, so this price is including tax at the rate of 12% on the list price. On the list price means MRP or tag price, it can be anything, okay.
A buyer asks for a discount on the listed price so that after charging GST, the selling price, this is selling price, the selling price becomes equal to the listed price. So find the amount of discount which the seller has to allow for the deal. All right. So now, kids, when we talk about this third sum, when we start the solving of this third sum, in the second sum we had already seen this kind of a sum where the tax was already included in the given price. So so what I will do is, so when we start with the sum, my first step will remain the same. Let the market price be X. Okay. Now this price is inclusive of tax. That means it is MRP plus tax together gives me 3136 rupees. So we need to find the tax on this. So tax is how much? So tax will be 12% on my X rupees. So 12% of X, that is 12 upon 100 into X, which is 12 upon 100X. Okay. Now can we add? Can we create this whole equation? So we'll get X plus 12X upon 100 is equals to 3136 rupees. Now we'll make the LCM common. So I will get 112X upon 100 is equals to 3136. So we can find X ka value 3136 into 100 upon 112. Okay. So this becomes how much? This is approximately somewhere around, I remember the answer, it is somewhere around 2800 rupees. If I'm so, kids, the market price of an article is how much? 2800 rupees. Okay, so my MRP is 2800 rupees. This is the first case. Okay, now we'll go on the sum again. Now what they're asking you is, the buyer asks for a discount on the list price such that after charging the tax on the discounted price, okay, on the selling price, that becomes equal to the list price. So beta, now in this case what will happen is, now here we are going to assume let the discount be Y rupees. So therefore selling price becomes how much? 2800 rupees minus Y. Now tax charged on this will become how much? 12% of 2800 minus Y. Fine. So now the total price will become how much? My total price is equal to the list price, that is 2800 rupees. Now can I compare both of them? Yes. So this is going to be selling price plus tax is equals to 2800 rupees. So now here what I will do is, I will take 2800 minus Y plus tax on this, that is 12 upon 100 in bracket 2800 minus Y is equals to 2800 rupees. Hope this much is clear with everyone, because again I'll just try to explain this whole statement once again. What they're asking you is, the buyer is asking that after getting the discount, the selling price of an article should be equal to the list price. Simple. So suppose, for example, if I'm having my market price to be 100 and I'm getting a discount of 10 rupees on that, so when I will subtract it, I will get 90. Okay, but on 90 then again I have to add my GST on it, so then the price becomes again 100. So that is the reason why we are assuming it to be Y. Now you must be wondering, sir, what is the difference? यहाँ पर क्या अलग क्या हो गया? बेटा ये हमने
एक पार्ट देखा था सम का, ये सेकेंड वाला पार्ट है। इस वाले पार्ट में हमको ये इक्वेशन क्रिएट करके अब हम डिस्काउंट फाइंड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो दिस बिकम्स हाउ मच, दिस बिकम्स 2 6 50 2 3 and 2 25 so 2800 minus y plus 3 upon 25 in bracket 2800 minus y is equals to 2800. So I'll make my LCM common. So 28 in bracket 25 in bracket 28 minus y plus 3 in bracket 28 minus y the whole upon 25 is equals to 28. Now don't you think that this whole thing and this whole thing is same? So 25 plus 3 will become how much? 28 in bracket 28 minus y upon 25 is equals to 2800. Now what I will do is I will take the entire thing on that side. So 2800 minus y is equals to 2800 into 25 upon 28. Ones are hundreds are. So this becomes how much? 2800 minus y is equals to 2500 rupees. So this becomes 2800 minus 25 is equals to y, which is 300 rupees. Okay, so therefore discount is equals to 300 rupees. Okay, so this was your one kind of a sum. Okay, now so we have done 3 sums, and I am also giving you all kids 3 more sums for practice. Try solving them. Hope you will be able to solve after going through with my video, and if there is any doubt anywhere, please do leave a comment on my video. Okay, so I'm just holding for a few more seconds. Please look at the working क्या कह रहा है बेटा, वापस से मैं वही सेम चीज कह रहा हूँ। मुझे यहाँ पर प्राइस दिया गया था इंक्लूसिव ऑफ टैक्स जो कि 3136 था। यहाँ से मुझे मार्क प्राइस मिला। मार्क प्राइस के अंदर वापस से डिस्काउंट दिया गया था। डिस्काउंट देने के बाद जब उसके ऊपर टैक्स लगा तो वो प्राइस क्या हो गया, वो मेरा MRP ही बना, ठीक है। तब जाके मैंने ये सम सॉल्व किया और मुझे यहाँ पर जो डिस्काउंट मिला था 2800 रुपये पे, वो 300 रुपया मिला था। दैट मीन्स माई सेलिंग प्राइस वॉज 2500 रुपीज़ एंड 300 रुपीज़ विच वॉज चार्ज्ड on my selling price, which was 2500 rupees, was nothing else but the GST which was charged again on my 2500 rupees, so that it makes 2800 rupees as a MRP. All right, hope this sum is clear, and I'm also giving 3 more sums for practice. Please go through with it. All right, now see kids, these are the 3 sums which you all have to do it as a homework or practice, whatever you can say. Mukherjee purchased a movie camera for 25,488 rupees, which includes 10% rebate. Rebate, again, rebate is a discount. Okay, now kids, when I say rebate, rebate is a discount. Rebate is a discount. Okay, it's a discount which is given on the movie camera, on the list price, and 18% tax on the remaining price. Find the market price of a camera. So kids, this is very simple sum. Second sum, what they are saying is the market price of an article is rupees 7,500. So they have given you market price, so MRP is given to us. Okay, and a shopkeeper buys an article from the wholesaler at some discount and sells it to a consumer at the market price. So again, there is some discount involved in it. So the market price was 7,500. So we need to find the discount. Subtract the discount from the 7,500. You'll find the selling price on that selling. So that will be the selling price of a wholesaler, but he's selling it to the consumer at the market price. So whatever the discount he's having, that is the profit basically which he's going to make. The sales are intra-state, that is within the state, and the rate of GST is how much? 12%. If the shopkeeper pays 90 rupees as a
tax under GST to the state government, find number 1 the amount of discount, number 2 price inclusive of tax of the article which the shopkeeper paid to the wholesaler. बेटा सम में ना कुछ नहीं करना है, हमको ना यहाँ से पकड़ना है कितना बंदे ने GST पे किया स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। तो 6% 12% GST है, तो 6% गया हुआ है किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। उस GST से बेटा हमको GST मिलेगी। GST जब हमको जब बेटा मिलेगी, बेसिकली हमको डिस्काउंट फाइंड करना है। तो एनीवेज ही सेलिंग एट 7500, इस पे 6% फाइंड कर लो, ठीक है। इस पे 6% फाइंड कर लो, तुमको बेटा यहाँ पर ये मिल जाएगा, ठीक है, GST मिल जाएगी। और हमको बेटा यहाँ पर डिस्काउंट तो कुछ दिया है नहीं, तो वी हैव टू सॉल्व दिस सम। आई थिंक दे हैव नॉट गिवन द शॉपकीपर पेज 90 रुपीज एज अ टैक्स अंडर GST। सो बेटा अभी इसने टैक्स पे किया हुआ है ना, ठीक है। तो टैक्स पे करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, आउटपुट GST माइनस इनपुट GST। कितना था इसके पास, कितना 90 है। आउटपुट तो हमको यहाँ से मिल जाएगा 7500 इंटू 6%, बट इनपुट हमको नहीं मिलेगा, इनपुट GST हमारे पास है नहीं। तो हम पहले यहाँ से क्या कर लेंगे, इनपुट GST फाइंड कर लेंगे। इनपुट GST हमें जब मिल जाएगा तो हमें सेल प्राइस मिल जाएगा। जब सेल प्राइस मिल जाएगा तो सेल प्राइस को तुम मार्केट प्राइस से माइनस कर दो, तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। ये हमको मिल गया प्राइस। फिर हम ये वाला सेकेंड सम भी कर लेंगे। थर्ड सम पे आ जाओ। The retailer buys an article at a discount of 15% on the printed price. Printed price is again a marked price. Okay, from the wholesaler. He marks up the price by 10% on the printed price, but due to competition in the market, he allows a discount of 5%. This is little complicated, kids. तो दिमाग लगाना पड़ेगा on the marked price to a buyer. If the rate of GST is again how much, 12%. The buyer pays rupees 468 for the article inclusive of tax. Okay, so find the printed price, MRP find karo, and the profit percent of the retailer. Kids, now this one sum you all try. इसको try करो, try करके मुझे बताओ कि तुम लोग सम सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर जो GST है वो ख़त्म हुआ। फाइन, होप मैं ये मान रहा हूँ कि सभी को चैप्टर समझ में आया होगा। अगर सपोज किसी को चैप्टर नहीं समझ में आया, फिर कोई ऐसा पार्ट था जो बच्चे फिर भी समझना चाहते हैं जो मैंने यहाँ पर मिस आउट कर दिया है, प्लीज़ आप सब मुझे कमेंट में वो पार्ट, जो भी पार्ट आपको समझना है वो मेंशन कर सकते हैं, और फिर मैं एक नए वीडियो में रिकॉर्ड करके मैं वो ज़रूर अपलोड करूँगा। होपफुली द वीडियो वॉज क्लियर एंड इट इज़ यूजफुल, लाइक इट विल बी यूजफुल टू ऑल my students, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।